Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to start our chapter 1, The Fun They Had. So in this chapter there are two characters, one is Margie and the other one is Tommy, and they both are kids, and Tommy founds a book and it's very weird for him. Why? Because this story is set in the future and they don't have those paper books now. So they only study through telebooks. So when he finds that there is a book made of paper, so it's very different for them. And the other character that we have, Margie, she also gets included in that. And then they discover what kind of schools they had in the past, because that book is about the schools that they had in the past time. Okay, so let's start our chapter. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. So now we know when this story is being the story is happening in 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." So for them, a real book is what? Like a paper book. He found a book made of paper. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So she was being told that there was a time जब सारी stories किस पे print होती थी? Paper पे print होती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly. So they started turning the pages and those pages were yellow and crinkly. Yellow and crinkly थे pages. Crinkly मतलब they had these folds in them. And yellow क्यों थे? क्योंकि if you must have seen जब हम कोई बुक होती है या कोई न्यूज़पेपर भी होता है, बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो येलो होने लग जाता है. जो वाइट पेपर होता है वो येलो टर्न होने लग जाता है. सो दैट बुक वॉज ओल्ड एंड दैट्स वाई द पेजेस वर येलो. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. So it was very weird for them that the words were not moving. Like when we have words on a telebook, like you have words here, right? So I can move the words like that. But on a book, they don't do that. Words ऐसे move नहीं करते हैं, ठीक है? So it was very funny to them. उन्होंने कभी बुक नहीं देखी थी ऐसी पेपर वाली, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा फनी थी. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it for the first time. और जो first time उन्होंने पढ़ा था, तो जब वो वापस से उसी पेज पर गए, फर्स्ट पेज पे, तो वो वर्ड्स वैसे के वैसे ही थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे. ओके, और हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, हम लोग टेलीबुक में चेंजेस कर लेते हैं, हम लोग अगर फ़ोन पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, बट वहाँ पे वो वर्ड्स एकदम वैसे ही थे. सो इट वॉज समथिंग न्यू टू देम. जी सेड टॉमी, "What a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." Okay, so Tommy says कि कितना वेस्टफुल है ये. एक बुक है आपके पास एंड यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू मेंटेन इट. मेरी जो टेलीबुक है या जो मेरी टेलीविजन स्क्रीन है उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं और अभी उसमें और सारी बुक्स आ सकती हैं, तो मैं उसको तो नहीं फेंकूंगा. लाइक इट कैन कीप अ लॉट ऑफ बुक्स. सो ही सेज दैट इट्स अ वेस्ट. दैट बुक इज अ वेस्ट. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. So Margie was 11 and Tommy was 13 years old and उसने इतनी telebooks नहीं देखी थी जितनी Tommy ने देखी थी. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking. Because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." "So, where did you find it?" she asked. कि तुम्हें ये कहाँ मिली? So he says, he was very busy in reading. So he says कि मुझे attic में मिली. Attic is what? That space between the roof. जो घर होते हैं, जो ऐसे होते हैं, ठीक है, तो उनमें और जो roof होती है,
उनमें बीच में जो स्पेस होता है उसको हम एटिक कहते हैं, ठीक है। सो उसको कहाँ मिली थी, वो जो एटिक होता है जो स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज होता है, स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है, तो वो एटिक में मिली थी उसको। व्हाट्स इट अबाउट? तो मार्जी पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है। सो टॉमी सेज इट्स अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। School, what's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it even more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So Margie did not like school. उसे स्कूल जाना, स्कूल पसंद ही नहीं था, बट अभी वो और ज़्यादा हेट करने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट देता ही जा रहा था ज्योग्राफी में, और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही थी। एंड अल्टीमेटली उसकी मदर शी शुक हर हेड, और वो परेशान होकर उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया टू मेंटेन दैट, उसको उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. So that county inspector who came, he was a round little man, he was a bit chubby and his face was red, और वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आया था जिसमें उसके सारे टूल्स थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो एक मार्जी ने उसने मार्जी को एक एप्पल दिया एंड ही स्टार्टेड टेकिंग द टीचर अपार्ट। दैट मीन्स उसने वो जो टीचर था उसका, दैट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट था या जो कंप्यूटर था, वट एवर इट वॉज, उसको खोलना शुरू कर दिया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So Margie was hoping कि इसे इसको अभी खोल तो दिया है, बट आई होप, आई विश कि इसको वापस ठीक करना ना आता हो या इसको वापस जोड़ना ना आता हो, क्योंकि शी ऑलरेडी हेटेड स्कूल। तो शी वाज थिंकिंग कि अगर ये खराब हो जाएगा, अगर मेरा मैकेनिकल टीचर ही खराब हो जाएगा तो मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। सो शी वाज होपिंग फॉर दैट कि वो उसको उसे ठीक करना ना आता हो, बट ही न्यू हाउ टू डू इट बिकॉज दैट्स व्हाट हिज जॉब वाज, एंड देयर इट वाज लार्ज ब्लैक एंड अगली। उसके लिए क्या बोला गया है मैकेनिकल टीचर के लिए? इट वाज लार्ज ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. So what she hated more was the homework that she had to put in a particular slot. एक स्लॉट था उस मैकेनिकल टीचर में जिसमें उसको अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, एंड शी हेटेड इट। एक उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड शी हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड। उसको किस में लिखना पड़ता था? एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6, और वो पंच कोड उसे कभी सिखा दिया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो अपना होमवर्क सबमिट करती थी या टेस्ट पेपर सबमिट करती थी, मैकेनिकल टीचर थोड़ी देर में सारे मार्क्स कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. So he was done with that and he patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. John. I think the geography sector was geared up a little too quick. Those things happen. Sometimes I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. So he said कि it's not the little girl's fault, इस बच्ची की कोई गलती नहीं है इसमें। Actually what happened was, जो geography sector है वो थोड़ा सा तेज हो गया था, लाइक उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी, तो मैंने उसको वापस एक 10-year-old लेवल पे सेट कर दिया है, एंड नाउ एवरीथिंग विल बी fine and her progress is quite satisfactory. That means she is doing good for herself. Margie was disappointed. She has been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away
for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she was hoping कि जैसे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे बहुत टाइम के लिए, टेकन टॉमीज टीचर ऑल टुगेदर, एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे एक पूरे एक मंथ के लिए अराउंड, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, तो उस वजह से उसके टीचर को एक महीने के लिए ले गए थे. सो शी वॉज होपिंग फॉर दैट कि मेरे टीचर को भी ले जाएं, but that did not happen and she was very disappointed because of that. So she said to Tommy, why would anyone write about schools? Now we are back to the story. So she is asking कि कोई schools के बारे में क्यों लिखेगा? What's so special about schools? Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Now he's being very superior, you know, like I know everything, you don't know, and I am superior to you, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा आता है. So he is in that attitude. और वो उसको कह रहा है कि हमारी तरह के स्कूल्स नहीं थे, ये पहले वाले स्कूल्स जो उनके सेंचुरीज अगो होते थे, लाइक ही इज प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड वेरी केयरफुली, सेंचुरीज अगो होते थे. सो ही हैज अ लिटिल एटीट्यूड एंड ही इज फीलिंग सुपीरियर बिकॉज ऑब्वियसली वो उससे बड़ा है और वो उससे ज़्यादा जानता है. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो अब वो थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, तो वो बोलती है ठीक है, मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल्स होते थे. फिर she starts reading again and then she asks कि anyway they had a teacher, तो उनका टीचर होगा. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Now here a regular teacher, what does a regular teacher mean? उनके लिए regular teacher क्या है? मैकेनिकल टीचर है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि रेगुलर टीचर नहीं थे उनका जो टीचर था, it was a human being. A man, how could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो तो बच्चों को सवाल पूछता था उनसे और उनको होमवर्क दे देता था. A man isn't smart enough. तो मार्जी कहती है एक मैन या एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट नहीं होता है. हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर? वो तो इतना स्मार्ट होता नहीं है. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. वो बोलता है ऑफ कोर्स हो सकते हैं, मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को, मैकेनिकल टीचर को मालूम है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा. वो बोलती है हाँ आई बेट कि उनको पता होगा. आई बेचा इज व्हाट? कि आई बेट यू, दैट मीन्स हाँ मैं शर्ट लगा सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि उनको उतना पता होगा. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब वो आगे बोलती है कि ठीक है, बट मैं नहीं चाहूंगी कि एक अनजान इंसान मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी उस पर हंसने लग जाता है बिकॉज ऑफ वॉट शी वॉज थिंकिंग कि टीचर को घर आना पड़ता होगा, तो वो ये सोच के उस पर हंसने लग जाता है. तो वो उसे एक्सप्लेन करता है कि टीचर घर में नहीं रहता था, वो घर आता नहीं था. ऑल द किड्स वेंट टू अ स्पेशल प्लेस, लाइक देयर वाज दिस स्पेशल प्लेस टू स्टडी, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे. ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. श्योर इफ दे हैड द सेम एज ऑफ द सेम एज. तो क्या हाँ श्योर, अगर वो सारे सेम एज के होंगे तो वो सारे लोग सेम चीज पढ़ेंगे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. सो मार्जी सेज कि मेरी मदर के अकॉर्डिंग तो हर बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से, हर बच्चे के लेवल जो अलग अलग होता है समझने का, उसके अकॉर्डिंग टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read it. तो वो बोलता है कि अरे ठीक है, हमेशा पहले ऐसा नहीं होता था जैसा अभी होता है, और तुम्हें अगर ये नहीं पसंद आ रहा है तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools.
They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. So उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी और मार्जी की मदर उसको आवाज लगा के बुला लेती हैं. एंड शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स इवन मोर. उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था उसको बुक पढ़ने में. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मामा. नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो अब जाना तो पड़ेगा, मम्मी ने बुला लिया, स्कूल है. सो वो उससे पूछती है कि टॉमी क्या मैं तुम्हारे साथ बाद में और ये इस बुक को पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉन गैलेंटली, लाइक वेरी कैजुअली ही सेज कि हाँ ठीक है, मे बी पढ़ सकती हो तुम. ही वॉक्ड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arms. और वो ये बोलता हुआ आगे बढ़ जाता है और अपने आर्म्स के नीचे वो बुक दबा के वो निकल जाता है. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्जी का स्कूल रूम कहाँ पे था? उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. मार्जी का जो टीचर होता था, जो मैकेनिकल टीचर था, वो उसको ऑन कर देते थे सेम टाइम पे, सैटरडे और संडे के अलावा. दैट वॉज द डे शी हैड हर हॉलीडेज. और उसके अलावा वो सेम टाइम पे एवरी सिंगल डे स्टार्ट हो जाता था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उनकी मदर का मानना था कि अगर छोटे बच्चे हर टाइम पे सेम टाइम पे एवरी सिंगल डे अगर वो पढ़ाई करें तो दे लर्न बेटर. द स्क्रीन वॉज lit up. It said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन चालू हुई, उस पर क्या लिखा हुआ था? Today's arithmetic lesson is on adding of proper fractions. और कल का होमवर्क उसको इंसर्ट करने के लिए बोला गया. Margie did so with a sigh. Now she took a deep breath. Sigh is what? Taking a deep breath and exhaling. तो एक गहरी सी सांस लेना, maybe because of relief or maybe because of disappointment. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में चल रहा है, जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे जैसे होते थे, तो वो अभी उनके बारे में सोच रही है. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And all the teachers were people. So what she was thinking कि पहले का स्कूल टाइम कितना अच्छा होता होगा. वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ स्कूल आते होंगे, सब एक साथ पढ़ते होंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करते होंगे. क्योंकि वो तो अकेली पढ़ती थी, तो उसके पास कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं होता था. एंड शी वॉज ऑल अलोन, तो उसको अकेला फील होता था, अकेली पढ़ती थी. तो वो पुराने स्कूल्स के बारे में क्यों सोच रही थी? क्योंकि उसको पता था सब साथ में बैठते होंगे, स्कूल यार्ड में सब साथ खेलते होंगे, सब साथ में स्कूल आते होंगे, सब साथ में घर जाते होंगे. सो शी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स. एंड द टीचर्स वर पीपल. के जो टीचर्स थे वो भी एक्चुअल पीपल थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4. तो वो क्वेश्चन उस पे आ गया, वो एक्सप्लेनेशन आ गया उस पे स्क्रीन पे. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. And Margie was thinking कि पहले जो बच्चे होते थे उनको स्कूल में कितना मज़ा आता होगा साथ में पढ़ने में. She was thinking about the fun they had, कि वो कितना मज़ा करते हैं होंगे, वो सारी चीज़ें वो सीख रही थी. Okay, so I hope you understood the chapter and I hope you will start appreciating your schools, कि आप लोगों को अकेले बैठ के नहीं पढ़ना पड़ता है. You have all these friends and you have teachers as people as teachers. And thank you. I hope you understood it. And we'll meet in our next lecture.